A very good evening, sir. Good evening to all of you. How are you, sir? I'm good. सत श्री अकाल जी, पुनीत जी क्या हाल है? अनिल सर नमस्कार. नमस्कार. Shall I start, sir? Sure, please. A very good evening to all and welcome to the national webinar series organized by the Modern Group of Institutions. Today we have extremely renowned, experienced personality as a guest speaker amongst us, Dr. Manpreet Singh Manna, sir. He's Associate Professor at SLIET, a centrally funded deemed university established by Government of India, Longwal, Punjab, and a former director at AICTE. We have Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir, our chairman, Shri Anil Kharia, sir. On the behalf of Modern Group of Institutions, I, Assistant Professor and Head Admissions Neha Sharma, welcome you all on today's webinar series. Our topic for today's webinar is Entrepreneurship and Startup, a Step Towards Self-Dependent India. Before starting the session, I would like to introduce our organization first. Modern Group of Institutions is a leading group of premier institutions in Indore affiliated to RGPV Bhopal, Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore, CBSE New Delhi, and approved by AICTE New Delhi, NCT and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce, and education. We offer more than 8 courses in this field that includes the B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharmacy, BBA, MBA, BCom, and B.Ed. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, that is Modern Laboratory and Nandini Medical Private Limited. Modern Laboratory was established in 1979 by late Shri P.C. Kharia sir, and Nandini Medical Laboratory was established in 1998. Both gained the prestigious examination in All India rating of pharma industries. We also have Modern International School, which was established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship. Hence, we introduced MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year of 2019, which is supported by the MSME Government of India. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for largest human image of medication capsule. Also, we are recognized participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have the Modern Innovation Council Cell, which is the Institute Innovation Council Cell by IIC MHRD Innovation Cell. Now, I request our chairman, sir, Shri Anil Kharia, sir, to welcome our today's guest, Dr. Manpreet Manna. Good evening, sir. Good evening. The Professor Dr. Manpreet Singh Manna ji is the renowned personality in the field of academics, startups, newly entrepreneurs. Everybody knows you. Sir, we welcome you on our series of webinars, Modern Talks. और सर जो मैंने आपसे आप इंदौर में आए थे, बातचीत हुई थी और मैंने आपको कहा था कि भाई ये जिस तरह से चाइना का दखलंदाजी अपने यहाँ पर है, इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ AICTE और किस तरह से नए हम इनोवेशन सेंटर ला के किस तरह से हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। और खैर अब सभी लोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी लोग इस दिशा में तो बहुत कुछ सोच ही रहे हैं और काम भी हो रहे हैं और इसी के ऊपर अच्छे से प्रकाश डालने के लिए सर हमने आपको इनवाइट किया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और निश्चित तौर पर मतलब आपसे अच्छा वक्ता, वैसे भी आपकी वाणी में तो सर सरस्वती जी बैठी है, तो आपसे अच्छा वक्ता इस फील्ड के बारे में हमें कौन मिलेगा। निश्चित तौर पर आज सभी के लिए बहुत फायदेमंद दिन है, लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए, और जो आप जोश और एनर्जी भर देते हैं वो तो वाकई लाजवाब है। सर यू आर मोस्ट वेलकम सर, एंड आई आल्सो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स attending this webinar. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, before moving further, it is my honor to introduce Dr. Manpreet Manna, sir.
Dr. Manpreet Singh Manna, born on 14th March 1971 at Patiala, Punjab, graduated in Electrical and Electronics Engineering from Mysore University in the year of 1993. He did his Masters of Engineering in Power and Machines from the Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, and PhD from SLIET, a centrally funded and deemed university, Longwal, Punjab, starting his teaching profession as a lecturer from St. Longwal University, Engineering and Technology in the year of 1997. He attained the position of Director, All India Council for Technical Education, that is AICTE, under Ministry of HRD, Government of India, New Delhi, on deputation from 2014 to 2018. During his 4 years tenure in AICTE, he also worked as director of Swayam MOOCs project and Prime Minister's special scholarship schemes. Mr. Manna delivered lectures on many national and international platforms in different countries like USA, Switzerland, Russia, Thailand, Singapore, Dubai, and China. Dr. Manna also edited one exclusive book for faculty entitled Higher Education Faculty Career Orientation and Advancement. Dr. Manpreet Singh Manna sir has many awards in his account, such as President Award, a Commendation Award 2017, Editor Choice Education Excellency Award 2019, Waving Dreaming Digital Leader of India Award 2019, Medal of Honor 2018, Eminent Engineers Award 2017, Exceptional Leaders of Excellence 2017, Innovation Policymaker Award 2017, Rashtriya Shiksha Gaurav Pushkar Award 2015, Outstanding Faculty Award 2015, Bharat Excellence Award 2014, and Best Citizen of India Award, and to name a few. On the behalf of Modern Group of Institution, I feel honored to welcome you, sir. Thank you very much for inviting me for a very important topic. So I just request you give me the rights to sharing screen, so I will be able to share my screen. I will start today's session. Definitely. Although, yeah. So there are many reasons to talk about the entrepreneurship and startups, sir. And we are very fortunate to have a very experienced and expert guest speaker amongst us, Dr. Manpreet Singh Manna, sir. Now I request you, sir, to please start your introductory speech on today's topic, that is entrepreneurship and startup, a step forward to self-dependent India. Over to you, sir. Thank you. I hope you are able to listen me. So just give me the rights for sharing the screen. I would like to show my PPTs, some of my presentation for this. So which I'm unable to do it. I'm trying it, but the host disabled attendee screen sharing. That's the message popping up on window. So please ask the organizers to give me the right, so I'll be able to do this. So still it's the same status. So I may request the organizers. So you want to show some presentation? Yes, that's what I'm asking you to be. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are doing this. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Thank you. So, okay, so today's topic is about this entrepreneurship and startup step towards self-dependent India. इस क्षेत्र में जितनी भी बात करेंगे उतनी ही कम होगी। क्यों? आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें उद्यमिता और स्टार्टअप्स को आगे लेके आना पड़ेगा। अभी इस मंच की शुरुआत से अनिल जी ने बड़ी एक सत्य बात कही और उनका विजन की मैं दाद देता हूं कि ये चीज उन्होंने साल पहले कह दी थी। जो विजनरी
इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, विजनरी एकेडमिशियंस होते हैं, वो समय को भाप रहे होते हैं। कोविड के बारे में शायद हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जरूर पता था कि चाइना की तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, और उसका अब अंदेशा जो था वो सामने नजर आ ही गया है। और हम पहले ही अपने आप को सक्षम बना चुके हुए हैं, लेकिन अभी और भी हमें ये यात्रा आगे लेके जानी है। सबसे पहले आज के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको एक सत्य बताना चाहूंगा मैं। द ऑक्यूपेशनल डेफिशिएंसीज, डेफिनेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, ये एक पानी के बहाव की तरह होती हैं, ये समय के साथ बदलती रहती है। एक ही चीज स्थिर है, अस्थिरता। सो वी शुड ऑलवेज गो विद द टेक्नोलॉजीज, वी शुड ऑलवेज गो फॉर द एडाप्टेबिलिटी। अडॉप्ट करना और एडाप्ट करना में अंतर है, इसको आज हम समझेंगे। ये एक ऐसी मैसेज आपके सामने रख रहा हूं जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि हमारी 40 करोड़ इंडियंस वर्कर्स की जो हम पॉवर्टी लाइन पे चले जाएंगे कोविड के कारण। ये हर जगह हो रहा है, इट्स नॉट ओनली विद इंडिया, इट्स द ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव टू रीइन्वेंट अवर करियर। यस, हम वापस शायद वहीं पे आ गए जो पहले हमारी होती थी बातें, जो अब्राहम मैस्लोज़ हायरार्की ने बताया था कि सेफ्टी, शेल्टर, रिमूव द डेंजर, और उसमें हम अब जॉब उसमें आ गए हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें पैशन को थोड़े समय के लिए पॉज करना होगा टू मेक एज ए प्रोफेशन। हमें कुछ स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी। यस, वी शुड एक्सेप्ट इट। You know, the challenge is not the technology here. Challenge is different. I just want to make it clear with this 4 W's and 1 H. What career I should choose? ये सवाल आज मेरे देश के तमाम विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होता है। आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? उनको लग रहा है कि हम तो अभी डिग्री ले लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम तो करवा देंगे, यूजीसी, AICT, जाएंगे कहाँ? हमें कौन आगे देखने वाला है? What career I should choose? Where will find the skills for my career? ये किस स्किल्स की बात हो रही है और ये कहां से मिलेंगी? इसकी दुकान कहाँ है? इसकी फैक्ट्री कहाँ है? ये स्किल्स कहां से लूं? खरीदनी है? कोई बांटेगा? ये सवाल भी है। Why I should be an entrepreneur और एग्जीक्यूटिव? सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि वो मुझ में क्या देखना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं? मुझे जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं कि जॉब सीकर बनाना चाहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, पूछना पड़ेगा अपने आप से। When I would get my break, मुझे कब मिलेगी जो मैं चाह रहा हूँ? भले वो मेरी खुद की फैक्ट्री होगी, मैं किसी फैक्ट्री में एग्जीक्यूटिव होगा, मुझे कब मिलेगा? ये 4 W's आपको बांध रहे हैं। इन चारों के सलाह, how we can get a solution to all 4 W's। और अंत में, who would help me? मुझे कौन मदद करेगा? शायद हम बहुत सारी चीजों में ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि हर चीज के लिए समाधान होता है, उसका एक तरीका होता है। हम शायद तरीकों को नहीं पहचानते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं। जी हाँ, ये है एक सत्य। कभी सुना ये नाम? एक कैरियर कोच भी होता है। स्पोर्ट्स के तो कोच सुने होंगे कि ये कोच मिल गया तो ये खिलाड़ी उम्दा खेलेगा, ये कोच मिल गया तो ये इंटरनेशनल लेवल तक जाके खेलेगा, भले वो क्रिकेट है, भले वो फुटबॉल है। कभी कैरियर की कोचिंग के बारे में सुना? कैरियर कोचिंग इज नॉट अबाउट द अर्निंग ऑफ मनी। पैसा नहीं बनाना है, देश बनाना है, लोगों की जिंदगी बनाना है। इंडिया नीड्स 2 मिलियन कैरियर कोचेस टू एड्रेस 600 मिलियन यूथ करियर। भटक रहे हैं वो। आज एक सत्य बताऊं कि पेरेंट्स 21 साल बच्चे को बड़ा करके फिर भी जाता है एक पर्टिकुलर सेंटर में और कहता है कि सर आप काउंसलिंग करके बताइए कि मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग लेनी है कि मेडिकल लेनी है। आपने बच्चे को जन्म दिया, आपने बच्चे को बड़ा किया, आपको भी किसी से पूछना पड़ रहा है? और क्या वो 20 मिनट में बता पाएगा कि आपके बच्चे को क्या चेंज करना चाहिए? ये सवाल है। यहाँ पर कैरियर कोचिंग की बात हो रही है। कैरियर कोच क्या होता है? वो आपकी सारी प्रतिभाओं को जानता है, परखता है, समझता है, आपका शॉर्ट एनालिसिस करता है। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या गेन कर सकते हो, इसको थ्रेट्स क्या है। मेरे को पानी में छलांग लगाने से डर लगता है, मेरे करियर कोच को पता रहेगा। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मेरे करियर कोच को पता रहेगा। ये करियर कोच होना बहुत जरूरी है। काश ये करियर कोच आज हमारे साथ रहा होता तो हम देश का एक युवा
उभरता सितारा, उभरा क्या, वो तो उभर चुका सितारा था, हम उसको खोते ना, क्योंकि उसके साथ संवाद करने वाला कोई नहीं था ना, वो ढूंढता रहा। तभी तो वो माँ को याद करता था जो कई वर्षों पहले चली गई थी। उसको माँ जैसा दोबारा मेंटर नहीं मिल पाया इस समाज में, इस संसार में, इस बॉलीवुड में। नहीं तो क्या नहीं था उसके, प्रतिभा की कमी थी। उसके छिछोरे को देखो, उसकी मूवी देखो, धोनी को धोनी कह रहा मैं ऐसा अभिनय नहीं कभी कर पाया जिंदगी में जो उन्होंने पिक्चर में करके दिखा दिया। कोच नहीं था ना जो उनको मेंटल हेल्थ भी दे देता साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात सारी करेंगे, शुरुआत यहां से करना चाहता हूँ। ये मेरे क्वेश्चंस मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए अपने पैड पे जो मुझे सुन रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, व्हाट करियर आई शुड चूज, वेयर विल फाइंड अ स्किल्स फॉर माय करियर, व्हाई आई शुड बी एन एंटरप्रेन्योर और एग्जीक्यूटिव, व्हेन आई वुड गेट माय ब्रेक। इसके जवाब आपको दे सकता है आपका करियर कोच। जब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा है, आपको खुद का करियर कोच बनना पड़ेगा। जी हाँ, स्वयं से बात करने का प्रयत्न करें, परंतु बहुत कठिन होता है। इसके लिए दूसरी वीडियो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरी YouTube पे जाएंगे, आपको मिलेगी, आपको 20 माइंड टूल्स मिलेंगे। देन यू विल लर्न हाउ टू स्पीक योरसेल्फ, हाउ टू राइट अबाउट सेल्फ, हाउ टू रीड योरसेल्फ एंड हाउ टू लिसन योरसेल्फ। कुछ इस तरह से हमें अपना माइंडसेट की जो है चेंज लानी पड़ेगी। मेरे जमाने में जब हमने जॉब ली, जो मेरे साथ में कुलीग्स फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं, वो मानते हैं कि सर हम तो 8 to 5 वाले बंदे हैं, 9 बजे जाएंगे, 5 बजे घर आ जाएंगे। सर मुझे तो मेरा दफ्तर पता है, मेरा कमरा पता है, मेरा चेयर पता है, मेरी टेबल पता है, मेरा कंप्यूटर पता है। सर आई एम फोकस्ड ऑन माई इनपुट्स। सर आई जस्ट क्लिम द लैडर। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, सर मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा। ये भी फैक्ट्री में होता है, दफ्तरों में। पहले सर मैं एलडीसी था, फिर मैं यूडीसी था, फिर मैं असिस्टेंट बना, फिर मैं सुपरिटेंडेंट बना, फिर धीरे धीरे मैं एसडीओ बन जाऊंगा। ये था, अब नहीं है। नाउ वर्क एनी टाइम, इट्स अ प्रूवन। वर्क एनीवेयर, इट्स अ प्रूवन। यूज एनी डिवाइस, इट्स अ प्रूवन। आज मैं आपके साथ हूं, फिजिकली नहीं आया ना। आज 15 मिनट पहले मैं यहाँ से सेज यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, पता है आपको, 1.5 घंटा मेरा सेशन वहां पे चल रहा था जेएफटीपी में। तो मैं भोपाल से उठ के इंदौर में पहुंच गया हूँ सिर्फ 15 मिनट में। कौन सी बुलेट ट्रेन लेके आएगी मुझे, लेकिन मैं आया ना टेक्नोलॉजी के कारण। क्रिएट योर ओन लैडर, यू हैव टू बी अ एग्जीक्यूटिव सिंगल विंडो क्लियरेंस। आज इंडस्ट्री को वो बंदा चाहिए जिसके आने से उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये उस पर डिपेंडेंट हो गया, ये उस पर डिपेंडेंट हो गया। ये वो जमाना गया कि भाई मुझे 2 क्लर्क दे दो, 1 हेल्पर दे दो, फिर मुझे ये दे दो तो मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, भाई आपको खुद अपनी चीजों को पकड़ना है, अपनी चीजों को चलाना है। यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बिकम अ लीडर। बॉस और लीडर में यही अंतर होता है। बॉस सिर्फ कमांड देता है, बॉस सिर्फ टारगेट देता है। लीडर टारगेट में जाने का रास्ता भी होता है, और ऊपर टारगेट से हाथ नीचे लगा के खींच रहा होता है कि टारगेट बताया तो टारगेट तक पहुंचाऊंगा, भाई ये लीडर होता है। सो आज लीडर्स चाहिए, बॉस नहीं चाहिए। सो चेंज ऑफ माइंड सेट इज इक्वली सिग्निफिकेंट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ कंप्यूटर्स घर में लेके आ जाने से आप कंप्यूटर सेवी नहीं हो जाएंगे, जब तक आप अपना माइंड सेट कंप्यूटर के साथ नहीं चलाएंगे। दैट इज माई कॉल। 21st सेंचुरी सर्वाइवल किट आपके घर में अभी पड़ी होंगी, दवाई, काढ़ा पी रहे होंगे, मास्क पड़ा होगा, वेंटिलेटर का इंतजाम करके रखा होगा, दिक्कत आती है। ये एक और सर्वाइवल किट मैं बता रहा हूँ। ये सारी स्किल्स आपको चाहिए होंगी। चूज आप कर लीजिए, इट्स अ प्लेटर, यू सिलेक्ट। But without critical thinking, without problem solving, without curiosity and imagination, without creativity, without collaboration, do you think you will survive in the 21st century? I am sorry. You will. जितनी जल्दी समझ लेना उतना अच्छा है। आपको ऑनलाइन सर्चिंग करनी आनी चाहिए, आपको ऑनलाइन लर्निंग भी करनी आनी चाहिए। आप आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आपको मूक्स नहीं अटेंड करने आते, ऑनलाइन आपको जूम नहीं खोलना आता, आपको ईमेल नहीं बनानी आती, तो क्या आज आप मुझे सुन पा रहे होते? या आपने दी ना? आपको यूट्यूब चलानी आती है ना? आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना आता है, आपको लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, तभी तो जॉब्स आ रही है ना घर बैठ के। मेल कैसे आती है? अब वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कितनों ने जाके अपना नाम दर्ज करवाया होगा कि सर मैं इस प्रांत में हूँ, मैंने बीएड कर ली है, मैंने बीए कर ली है, तो मुझे जॉब। कहाँ, अब तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कोई बात ही नहीं करता। आजकल तो लिंक्डइन एम्प्लॉयमेंट होता है, टास्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं हमारे पास। हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है। आज ये सेशन होगा, इसकी रिकॉर्डिंग इससे ज्यादा चलने वाली है। अभी सुनने वाले शायद 90 होंगे, आने वाले 10 दिनों में शायद 900 सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुतों को लगा होगा सेशन तो रोज ही हो रहे हैं, हजारों वेबिनार्स हो रहे हैं, एक और हो रहा है उसी सीरीज में। मॉडर्न ग्रुप ने एक वेबिनार करवा दिया, कोई बात नहीं,
फिर दूसरा फ्रेंड को फोन करेगा, नहीं यार 2 बातें तेरे काम के बीच में, तू भी बीच वाली बातें सुन लेना, वो उतना ही सुनेगा, उसको पूरी 40 मिनट्स की वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उतना ही लेगा। क्यों? सोशल स्किल्स लेनी है, एजिलिटी, एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सर, मैंने तो सर सिविल की डिग्री की है सर, आप मुझे क्यों कह रहे हैं पाइथन सीखने के लिए? ओह माय डियर, सिविल की डिग्री की है ना, नौकरी भी तो करनी है, दूसरों के लिए नौकरी पैदा भी तो करनी है। आजा थोड़े से टूल्स कर लेते हैं, आजा थोड़ी सी स्किल्स ले लेते हैं। ये किसी की धरोहर नहीं है कि जिसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है वही पाइथन सीखेगा। ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के वो ही एआई सीखेगा। एआई तो टूल है मेरे भाई, जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर, जैसे प्लायर, वैसा टूल है, सबको लेना पड़ेगा, सीख लेना पड़ेगा। अच्छा है ना, तो जो अच्छी चीज हो उसको सीखने में कोई इतराज नहीं। अनलर्न, पहले उन चीजों को भूलना सीखो जो आप लाइबिलिटी बना के साथ में लेके चल रहे हो। रीलर्न, नई चीजों को सीखने की कोशिश करो। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आज भी मैं सीख रहा हूँ। जब मैं पढ़ के आया था मुझे सिर्फ GW बेसिक का पढ़ाई की थी मेरी बीटेक में, क्या मैं उसके साथ जिंदा रह सकता था? जब मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए पहुंचा तो कबोल आ चुकी थी। आज उसी कॉलेज में मुझे पाइथन भी पढ़ानी पड़ती है। अगर मैं रुका रहता GW बेसिका पे तो मैं भी वही होता जो नोकिया के साथ हुआ। कहा ना समय के साथ चलो, नहीं चल पाए। कहाँ है आज आपका नोकिया? जो 20 साल पहले नोकिया नोकिया होता था पूरे वर्ल्ड में, फोन होगा तो नोकिया का होगा। आज तो नोकिया की एक शॉप भी नजर नहीं आ रही होगी आपके इंदौर में। क्या है ये? समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा। सो दिस इज द 21st सेंचुरी स्किल किट्स। ये प्लेटर आपको हमने परोस दिया है। आप जाते हो होटल में, आप क्या कहते हो? वेज प्लेटर ले लेते हैं, उसमें मशरूम भी है, उसमें पोटैटो भी है, उसमें गोभी भी है। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कौन सी सब्जी खाएं? तो पापा ऐसे करो, वेज प्लेटर मंगा लो। मंगा लिए वेज प्लेटर, 30 डिशेस पड़ी है सामने, मोबाइल से फोटो खींचो इस स्लाइड की, डिसाइड करो मुझे ब्लॉकचेन पे जाना है, मुझे मोबाइल सोशल इंटरनेट पे जाना है, मुझे IoT पे जाना है, मुझे रोबोटिक्स पे जाना है, मुझे कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी पे जाना है, मुझे हेल्थ टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाने हैं। सोचा था किसने 3 महीने पहले कि इस देश में मास्क एक भी नहीं बन रहा, तो आज 3 लाख मास्क बनने शुरू हो गए? सोचा था किसी ने कि हमारी जो देश में 20 साल से कारें बना बना के उनका डंका बजता था कि इससे बढ़िया गाड़ी नहीं बना सकते हैं, आज वो वेंटिलेटर्स बना रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते समय सोचा था कि जब मैं मूर्ति उद्योग में काम करते करते वेंटिलेटर्स भी बनाऊंगा? ये समय के साथ चलना पड़ता है। दैट इज द ब्यूटी, चेंज इज ऑलवेज देयर। आप इसमें से चूज कीजिए, वेयर इज योर प्लेस, यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, एडवांस मटेरियल्स पे काम करना चाहते हैं, ये सब अगले 20 साल तक जिंदा रहने वाली चीजें हैं जो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ आपके सामने। आज मैं 20 साल कह रहा हूँ, शायद साल बाद मुझे ये कहना पड़े कि ये 5 साल तक जिंदा रहने वाली चीजें। क्यों हुआ? कुछ ऐसे ही ना। क्या हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मुझे सुनने में आया कि कोडलेस फोन चल पड़े। बड़े खुश होकर घर में कोडलेस फोन लगाया, पापा को जिद की कोडलेस फोन लेना, पैनासोनिक का कोडलेस फोन लेना। अभी वो फोन आया ही था, लगाया था, मैक्स पेजर करके एक डिवाइस आई, भी साथ में लगा लो, उस पर कुछ टेक्स्ट सा आता है। अच्छा मेरे को टेक्स्ट कोई भेजा, इतनी क्यूरियोसिटी था, इतना महंगा था, 350 रुपए का बिल था उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की। खरीदा, अभी आया और 6 महीने में चला गया। इतना मोटा भारी भरकम एक स्पाइस का मोबाइल हैंडसेट लिया, पहला कॉल थी 16 रुपए की, 32 रुपए की आउटगोइंग थी, 16 रुपए की इनकमिंग थी। आज हम कहाँ पहुंच गए? 4G 5G की बातें कर रहे हैं, इतनी फास्ट चल रही है टेक्नोलॉजी, हमें समय के साथ चलना होगा। कहाँ से ले ऐसी स्किल्स? मैंने आपके सामने रख दी है। You go any kind of MOOCs platforms, many are of free of cost, or because of COVID, I think the most of the MOOCs platforms are giving a online teaching free of cost. You go to Coursera, number of courses are free. You go to AICT NEET programs, through this number of courses are free. Coursera, then we have a open learning, then we having a open update, and then VisIQ, open MOOCs, many MOOCs platforms. I think most of the universities having their own MOOCs also, and very soon your modern group also going to start the MOOCs programs. You can start from there. You select where you want your good content, you get it. If you want the certified course, let it be a certified course. You're paying some fee, no problem. Hardly matters. BTech पे अगर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर हमें 10,000 20,000 देके स्किल्स के सर्टिफाइड कोर्सेज मिलते हैं, हमें ले लेने चाहिए। क्योंकि शायद आपकी BTech डिग्री की उतनी आज वैल्यू नहीं रहेगी मार्केट में जितनी आपकी स्किल्स की वैल्यू रहेगी जो आप एडिशनल स्किल्स लेके जाएंगे। ये आप, और दिस इज द गोल्डन टाइम व्हेन यू आर फ्री एट होम। आपके घर में ना किसी ने आना है ना आपने किसी के घर में जाना है, आपकी बेल पिछले 40 दिन से बजी नहीं होगी।
तो इससे अच्छा पीस माइंड कब मिलेगा टीचर्स को किताब लिखने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए, बुक्स बनाने के लिए, और स्टूडेंट्स को बुक्स प्लेटफॉर्म पे जाके लर्निंग करने के लिए। नहीं तो प्रेशर क्या होता था, सुबह फिर को पीली बस में बैठ के कॉलेज पहुंचना है, आज सेशंस है, आपकी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है ना, उसको कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव अ वेरी गुड सफिशिएंट टाइम बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, फ्री फ्रॉम ट्रेवल, यू आर सिटिंग एट होम, एंड बी एट होम, बी सेफ, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश। स्टार्टअप्स की बात करना चाहूंगा मैं इस मंच से। 15,472 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इन स्टार्टअप्स ने पता क्या कर दिया, मैंने बोला ना जॉब क्रिएटर, 1,48,897 जॉब्स क्रिएट की गई हैं कि इन्होंने 13,176 स्टार्टअप्स ने। अभी आगे मेरी यात्रा में रही, मैं आपको नाम बताऊंगा कुछ लोगों के। 45% recognized startups have a minimum one or more one women directors। कौन कहता है कि घर से बाहर सिर्फ लड़के निकलते हैं? आज हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां भी धमाल कर रही हैं, कमाल कर रही हैं। फंडिंग है ना हमारे पास, सीरीज फंडिंग चाहिए, क्राउड फंडिंग चाहिए, लोन्स चाहिए, वेंचर कैपिटल लेना चाहते हो, एंजल्स भी हैं हमारे पास। स्टार्टअप्स के लिए कीड़ा चाहिए, जील चाहिए, आग चाहिए, चिंगारी चाहिए, उसके बाद आइडिया चाहिए। 3 शब्द बोलता हूं मैं, थिंक, इंक, देन लिंक। पहले सोच बनाओ, क्रिटिकल थिंकिंग। सोच बनेगी तो आइडिया उत्पन्न होगा, आइडिया उत्पन्न होगा तो उसको आप लिख पाएंगे प्रोजेक्ट के रूप में। थिंक, इंक, फिर तो आप लिंक करना है। आप बोलिए किस बैंक से लोन लेना है, कैसे लेना है, क्यों। ये देखिए शिशु है, लोन अप टू 50,000 इज प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप, इनिशियल स्टेज पे 50,000, और भले 50 के 50 डूब जाए, प्रधानमंत्री योजना से कोई आपसे नहीं मांगेगा। किशोर योजना में जाएंगे 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा, तरुण में जाएंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक मिलेगा। आपके आइडिया कहां तक पहुंचा, पेटेंट हो पाया, आईपीआर क्रिएट हुआ, लॉजिकल प्रोडक्ट्स बन के आ रही है सामने, क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट साइज की मैन्युफैक्चरिंग बनानी आ गई है, 130 देशों को दवाई पहुंचानी है हमने, कितना बड़ा कार्य हमारे देश को मिला, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिला है, तो क्या उसमें स्टार्टअप्स नहीं चाहिए। कौन बना रहा है ऐसा वेंटिलेटर की 3 पेशेंट्स को एक ही वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, ये भी तो हमारे देश के बच्चे कर रहे हैं ना। ये सैनिटाइजेशन चैम्बर रातों रात कैसे बन गए, उसमें से गुजरे और हम सैनिटाइज हो गए, ये भी हमारे बच्चे बना रहे हैं। अभी तो देखिए क्या क्या इक्विपमेंट्स बन के आने वाले हैं। Government even provide the income tax exemption to you for the first 3 years and even a capital tax gain आपको exemption, अगर आप कमा लेना शुरू करेंगे, आपको लोन उतारना है तो आप कमाइए, आपसे टैक्स भी नहीं मांगा जाएगा, आपको रिबेट मिलेगा 80%। पेटेंट कॉस्ट के लिए, पेटेंट भी तो रजिस्टर करवाना होगा ना आपको। तैयार हो जाइए फॉर न्यू अवतार, होना पड़ेगा। डाटा एंट्री क्लर्क वैसा नहीं दिखेगा, कैशियर वैसा नहीं होता। पहले होता था कैशियर है तो वो नोट गिन रहा है, अरे नहीं, अब तो टेलर मशीन है ना, तुम्हें नोट नहीं गिनने, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स करना है, तुम्हें एनालिटिक्स करना है। टेली मार्केटिंग वैसे नहीं हो गया, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट वैसा नहीं होता जैसे पहले होता था, चेंज हो रहा है सारा, गेट रेडी। क्यों, 54% तो आपकी अनचेंज जॉब्स रहेंगी, बट अबाउट द 9% ऑफ द वर्कफोर्स विल बी डिप्लॉयड इन द न्यू जॉब्स। अभी आपने वो जॉब्स के नाम नहीं सुने होंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो आ रही हैं। 49% कंपनीज ने ऑलरेडी एआई के सॉल्यूशंस यूज करने शुरू कर दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीडब्ल्यूसी कह रही है, ये एमा कह रही है, उन्होंने सर्वे करवाया है। तो ऑटोमेशन फॉलोआउट आ गया है, सेक्टर गेटिंग अफेक्टेड, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। देखिए क्या है, ब्लॉकचेन डेवलपर, जो 2 साल पहले पास आउट उसको फोन करके पूछिए कि ब्लॉकचेन डेवलपर का कुछ सुना था आपने। अभी ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए हर देश में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट चाहिए, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी इंडस्ट्री नीड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बी अवर डिफेंस, अवर इकोनॉमी, our bureaucrats has to be get this specialist, you know, javascript developers, itni programming होनी है, robotics process automation consultant, have you ever heard this kind of jobs opening? And just look at here, do we asking for a degree? मैंने नीचे की लिखा है कि इसमें MTech कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है, या इसमें आपको PhD होना जरूरी है? नहीं, आपको कुछ certain of skill sets चाहिए, और वो skill sets ऐसे हैं, even you are a +2 non-medical, even you are even a matric, if you are a good computer savvy and you can do the online courses or maybe offline courses through some academia, through some coaching centers like a career coach, you can learn these technologies. Deep learning के लिए, TensorFlow के लिए, Python सीखने के लिए आपको बीटेक करने की, BCA करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ऐसे टूल्स हैं। ग्रोथ मैनेजर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट, फुल स्टैक इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, ये सारी जॉब्स बहुत ओपन हो चुकी हैं। For my country, there is a huge opening for these jobs. इसमें हर प्रकार के बच्चे चाहिए, हर प्रकार का टैलेंट चाहिए।
मत सोचिए कि सिर्फ एक प्रकार की जॉब्स होती हैं जो आईटी। मैं मानता हूँ आईटी का प्रभाव रहेगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसी में हम अपना रास्ता, आज मैं बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो इस टाइम आईटी प्रोफेशनल्स बन के अमेरिका में पहुंचे हुए, हमारे इंडिया के बच्चे। वो कैसे पहुंच गए? 4 साल तो वो केमिकल पढ़ रहे थे। They have done small skills along with the last 6 months. If you are preparing for IELTS, similarly, you can prepare for these kind of skills. It is as simple as it is to be learning simple programming, simple coding. Or sometimes we do not require the programming. Cyber security में programming कहाँ से आ गई? Cyber security is this kind of, you know, the network security, penetration testing, vulnerability assessment. You have to do these kind of skills. Python developer, digital marketing, very important. Today, we talk about the MSMEs. You know how many MSMEs? We have the million SMS in my country. Do all the MSMEs have the websites? आज जब भी मैं नेट पे ढूंढता हूँ मुझे चाइना की तो 10 साइट्स नजर आ जाती है, मुझे यहाँ से सामान खरीदना, मेरी इंडिया की साइट ही नजर नहीं आ रही, तो मैं खरीदूं कैसे सामान? हमारे देश में 93% मोबाइल फोन अभी भी दूसरी देश के बिक रहे हैं, हमारे यहाँ के मोबाइल फोन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। क्वालिटी एक है एड्रेस करने वाला इशू, आई डू एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग इट, क्वालिटी इज वन इशू, but the marketing is another issue. Reason being, we are not posting this. So the digital marketing, the digital analysis, the Google analysis, this all is going to be done by today's graduates. इसके लिए MBA करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर आपका अच्छा, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना आता है, आप सोशल डिजिटल नेटवर्किंग बना सकते हैं, आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, दीज आर द रिसर्च ईमेल। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि डिमांड कहाँ आ रही है, गूगल्स पे हिट किस चीज का जा रहा है, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन दैट। जिधर हिट जा रहा है अगले दिन वो वाली चीज बिकने के लिए मार्केट में आ जाएगी। दैट्स ट्रू। अभी देखिए ना, केरला के एक छोटी सी दुकानदार, फोटोस्टेट दुकानदार ने देखा सारी दुनिया को मास्क लगाने पड़ रहे हैं, उसने क्या किया, 15 मिनट में 60 रुपए में मास्क बना के दे रहा है। पहले आपकी एक फोटो खींचता है 60 रुपए में, आप मास्क लगा दीजिए, आपका चेहरा वैसा का वैसा, क्योंकि आपकी जो मूछें हैं तो मूछें आ रही हैं, वो पूरा ट्रांसपेरेंट मास्क वो बना के दे रहा है जिसमें आपका वही फेस दिख रहा है। तो किसने किया? एक फोटो कॉपियर जो कि मेट्रिकुलेट है, केरला का एक फोटो कॉपियर। उसको देख के अब सभी स्टेट्स में, अभी आपके इंदौर में भी शुरू हो गया होगा, डिस्ट्रिक्ट जो इंदौर से बिलोंग कर रहे हैं, जो जम्मू से बच्चा आया हुआ, जम्मू में भी वो चाहे तो ऐसी किसी को आइडिया दे सकता है कि भैया मास्क कौन से बनाने हैं, मेरा फेशियल पूरा दिखेगा। नहीं तो पहचान करनी मुश्किल हो रही है ना कि ये घर का आदमी आ रहा है कि बाहर का आदमी आ रहा है, क्योंकि मास्क बांधना मैंडेटरी है, हमें बांधना ही पड़ेगा। अब आने वाले कुछ महीनों में, शायद साल तक बांध के रखना पड़ेगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्या ना क्या चाहता, हेड्स आर सेम। हम नौकरियां नहीं खत्म कर रहे हैं मेरे भाई, हम तो आपका रोल चेंज कर रहे हैं। जो पहले आप हार्ड वर्क करते थे वो आप स्मार्ट वर्क करना है, करना आप ही को है। हथौड़ी के बजाय सोल्डरिंग पे आ जाओ। अभी वो मजदूर वो गया कि तसला उठा के भरेगा, उसके लिए मशीन है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए, मशीन को बनाने के लिए, मशीन की ट्रबल शूटिंग करने के लिए तो मुझे हाथ चाहिए ना, तो हमें स्किल्ड बंदे चाहिए। सो दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द नेक्स्ट डिकेड। क्रिप्टो करेंसी पहले तो नहीं सुना था, अब तो लारा भी आ गया है। बिटकॉइन तक तो बात नहीं खत्म हुई है। अभी आने वाले समय में हम सब आजकल पेटीएम पे जा रहे हैं, हम सबको डिजिटल करेंसी पे बात कर रहे हैं। सो ऑटोनोमस व्हीकल्स चल के आने वाले हैं। डोंट वरी, ड्राइवर्स की नौकरी नहीं जाने वाली, क्योंकि व्हीकल्स को कोई कंट्रोल भी करेगा, कोई कंट्रोल करेगा। सो वी हैव टू बी। और आगे बढ़ूं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक मॉनिटरिंग जॉब्स। देश के जितने आपके एयरपोर्ट्स के अंदर चलने वाली शटल्स हैं वो ड्राइवरलेस होने वाली है। पहला एक्सपेरिमेंट वहीं से करेगी गवर्नमेंट। उनको मैनेज कौन करेगा? ट्रैफिक कंट्रोल को। वहां पे तो बंदे बिठाने पड़ेंगे, कंट्रोल रूम में तो बंदे बिठाने पड़ेंगे, तो वही सैलरी वहां दे देंगे। डाटा ड्राइवर्स चाहिए हमारे। आपको पता है जब वार है क्या है? ये डाटा वार है, टोटली डाटा वार है। इट्स नॉट अ ऑयल वार, इट्स नॉट अ कोरोना वार, इट्स अ डाटा वार। आज भी ये दिक्कत हो रही है, WHO कह रहा है कि सही डाटा मिल रहा है, कहाँ पर कितने संक्रमित हैं, कहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, किसके पास कितनी न्यूक्लियर पावर है, किसके पास कितना GDP। सही डाटा तो कहीं भी नहीं आ पा रहा, और डाटा ही वार है। डाटा चुराना सबसे बड़ा क्राइम। मेरे क्रेडिट कार्ड उठा लिए, मेरे नेट बैंकिंग का डाटा उठा लिया, तो मुझे डाटा ड्राइवर्स भी चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए, हर बैंक को चाहिए, हर मोहल्ले में चाहिए। Healthcare workers, just read it, 300 million more people over the age of 65 in 2030। आज हम यंग इंडिया कहला रहे हैं, लेकिन 2030 में हम यंग नहीं रहेंगे। हमारे 300 मिलियन जो होंगे वो 65 एज के होंगे, तो उनसे पहले हमें हेल्थ केयर तो तैयार करने पड़ेंगे। आज तो हमें हॉस्पिटल्स ही कम पड़ रहे हैं, बेड्स ही कम पड़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हेल्थ केयर
पहले होता था पूरे शहर में सुनने में आता था कि एक वेंटिलेटर है उस हॉस्पिटल में है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी ना। आज अब नया जो गाइडलाइंस आ रही है ना, हॉस्पिटल की आपको परमिशन तब मिलेगी जितने बेड हॉस्पिटल है कम से कम 50% उतने आपको वेंटिलेटर्स रखने पड़ेंगे। ये नई गाइडलाइंस आएंगी अब। पहले तो एक भी वेंटिलेटर नहीं था तो भी हॉस्पिटल अप्रूव होता था। 300 बेड का हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो जाता था। समय चेंज हो रहा है ना, अब जितने वेंटिलेटर्स है तो उनको ऑपरेट करने वाले भी तो चाहिए होंगे, हेल्थ वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना। सिर्फ वेंटिलेटर्स बना देने से कुछ नहीं होगा ना, उनको चलाने वाला, उनको मेंटेन करने वाला भी तो चाहिए होगा। स्पेस टेक, अभी तो सिर्फ 2 लोग गए हैं बैठ के सैटेलाइट में। अब तो शुरुआत होगी, आपको प्लॉट लेने पड़ेंगे मार्स में, तो आप कहेंगे कि वहां जाना है, तो वहां लेके जाने के लिए आपको स्पेस टेक जॉब्स तो चाहिए। कंट्रोल रूम में कौन बैठेगा, सैटेलाइट में कौन आपको बिठाएगा और कौन सैटेलाइट बनाएगा। हमारा इसरो तो थोक के भाव में सैटेलाइट बना देता है, तो अभी देश में 2-3 और इसरो हम बना लेंगे तो कई देशों के सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च हो सकते हैं। तो ये वाली जॉब्स हमारे पास आ रही है क्योंकि इंडिया में इसकी पहचान बना रखी है अपनी वर्ल्ड में। We are the best satellite. So catch the wave and to be tuned with the technology. तैयार हो जाओ समय के साथ चलने के लिए। STEM और रहेगा, STEM और STEAM कहीं नहीं जाने वाला। Your mathematics is not going anywhere. Your engineering is not going anywhere. Your science is not going anywhere. They have to grow, but with skills. Work with skills. Alone degree will not help you a lot. चलिए मुद्दे पे आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। अभी तक कईयों को एंटरप्रेन्योरशिप का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि किस किताब से पढ़ना है। पहली बात तो इसके लिए कोई किताब नहीं होती, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता। ये तो आपके दिमाग की उपज होगी कि मुझे कुछ करना है। वो डिजिटल भी हो सकता है, वो एग्रो भी हो सकता है, वो एजुकेशनल। हमारा देश अगर आज भी सुरक्षित है, पता क्यों है? सैनिकों और शिक्षकों का कारण तो है ही है, कृषि प्रधान है। हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ता अनाज के लिए, दाना हमें मिल जाता है। तो फिर हम एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई आज ऑर्गेनिक खाना चाह रहा है। आज तक आपने कार्बन क्रेडिट्स वर्ड सुना है ना? आज मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूँ। आने वाले समय में इम्यूनिटी क्रेडिट्स मांगे जाएंगे। जब कोई जॉब लेने जाएगा उसको बोलेंगे तुम्हारे इम्यूनिटी क्रेडिट्स फॉर्म में भरो। अगर तुम हेल्दी हो तो जॉब करो, क्योंकि तुम्हें वायरस आ जाएगा। वायरस आ जाएगा तो मेरा वर्कर खराब हो जाएगा और दूसरों को भी संक्रमित करोगे। आज कौन जीवित है फिटेस्ट टू सर्वाइवल में? 2 कारण, एक जो स्किल्स लेके बैठा है और एक जो अच्छी सेहत लेके बैठा है। तो एग्री एंटरप्राइजेस, हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस, ये सारे एंटरप्राइजेस के पास इतना बड़ा इस समय हमारे पास है कि हमारी हल्दी, हमारी नीम, हमारी लौंग, हमारी इलायची, इसको किस रूप में लेके जाना है आगे। खेती करने में, प्रिजर्वेशन करने में, पैकिंग करने में, सेलिंग करने में, घर घर तक पहुंचाना है। एक छोटे से पेड़ के दरख्त के पत्तों को आज हम पानी में उबाल के पी रहे हैं, गिलोय को, और वो सबसे वरदान माना गया तब भी जब डेंगू था, और आज भी वरदान माना जा रहा है। उससे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स तो चाहिए मेरे देश में। हु विल क्रिएट दिस? सिर्फ डी फार्मेसी करने से कुछ नहीं होगा, बी फार्मेसी करने से कुछ नहीं होगा। हमें उतना ही आयुर्वेदा को भी आगे लेके चलना पड़ेगा, आयुर्वेदा भी लेके चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप भी तो लेके आने होंगे ना। एक शब्द है पूरे वर्ल्ड में बड़ा प्रचलित है, पता नहीं आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं इस शब्द से बिल्कुल डिफर कर रहा हूँ। मैंने कहा सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना कीजिए, सोशल डिस्टेंस मत। सोशल डिस्टेंस के चक्कर में तो सुशांत चला गया हमारा। हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है भाई। घर में भी परिवार के साथ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है कि हम संक्रमित ना हो। सोसाइटी से नहीं टूटना है, उनसे फोन पे बात करें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? मुझे तो सोसाइटी से बात नहीं करनी चाहिए, अपने दोस्तों से। तो ये गलत वर्ड चल पड़ा है और मुझे नहीं पता कि क्यों ये सब जगह यूज हो रहा है। अगर इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ तो सामाजिक दूरियां नहीं बनानी है, शारीरिक दूरियां बना के रखनी है बचने के लिए। तो यहाँ पे तो सोशल मीडिया एंटरप्राइजेस रादर चाहिए जो लोगों को अच्छी चीजें, क्योंकि आज इतनी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग कुछ भी रातों रात, हमारे देश में इतने नॉन एमबीबीएस डॉक्टर पैदा हो गए, मुझे समझ नहीं आई कोविड के बाद। वो एक दूसरे को क्या क्या सिखा रहे हैं। अरे भैया, डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो हॉस्पिटल में कर रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है। WHO जो कहेगा ठीक है, जो एम्स कह रहा है, पीजीआई कह रहा है वो ठीक है। आप क्यों कह रहे हो लोगों को ये खाओ, ये ना खाओ, ये पियो, ये ना पियो? इसी चक्कर में क्या हुआ अमेरिका में, डिसइंफेक्ट पी के 100 लोग मरे, क्योंकि किसी ऐसी डॉक्टर ने सलाह दी होगी कि डिसइंफेक्ट पी लो। और कहने को अमेरिका कह रहा है सबसे डेवलप्ड कंट्री है, पढ़ी लिखी कंट्री है, तो क्या हो गया आपको, 100 लोग मर गए, मान लीजिए खबरों में। तो सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। एनवायरनमेंट की बात करें तो जितना एनवायरनमेंट में काम हो सकता है हमारा आज की डेट में, लेकिन हमारे देश में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं बन के आ रहे कि जो एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट के ऊपर सोचें। मेरे देश की अभी भी 90% छतें धूप लेती हैं,
कमरे भी गर्म करती है, उनके ऊपर पैनल नहीं आ रहे सोलर के। अगर आप सोलर के पैनल लगवाने शुरू कर दोगे लोगों को, आप सोलर के बारे में बताओगे, उनका बिजली का बिल भी बचेगा, उनके कमरे भी ठंडे रहेंगे, और एक ग्रीन एनर्जी हम पैदा करेंगे, पोल्यूशन फ्री एनर्जी पैदा करेंगे। ऐसी एनवायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में हमें बहुत सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। चलिए, ये एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ऐसे दिग्गज नाम है जो आप सब जानते हैं। धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, रतन टाटा को कौन नहीं जानता, मूर्ति, आजिम जी, प्रेम जी, लक्ष्मी मित्तल, ये जितने में नाम यहाँ पे 10 लिए हैं मैंने, 10 बहुत होते हैं। ये हमारे देश के टाइकून है, हीरे हैं, डायमंड्स हैं। इन्होंने हमारे देश की जीडीपी को भी पकड़ा, संभाला, एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्या इनको पीछे से कोई खजाना मिला था? सोचिए, ये एंटरप्रेन्योर्स बने कैसे? बस ये 10 की अगर थोड़ी सी बायोग्राफी भी पढ़ना शुरू कर देंगे ना आप, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। चलिए, नहीं पढ़नी है, इधर आ जाता हूँ। ये तो आपके जमाने के ना, इधर के 10 कईयों को तो पता नहीं होगा किन की बात कर रहा हूँ। ये रितेश हैं, ये इंद्रजीत, जिनके मैंने नाम लिखे ना कि आयु जब ये आए हैं 25 साल वाले हैं, 26 साल। जी हाँ, मेरे देश के टॉप 10 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिलियनर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी तो पढ़ लीजिए, ये तो आपकी उम्र के होंगे। अक्षय और प्रेला की बात करूं, एन इंडियन हु बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनर्स इन द यूके। किया क्या इसने? इसने एक डोर स्टेप्स डॉट यूके ऑनलाइन स्टेट एजेंसी खोल दी विद 12 एम्प्लॉइज। आज वो बिलियनर है, अब तो बिलियनर बन गया। कविता शुक्ला कौन है भाई? द फाउंडर ऑफ फ्रेश पेपर्स। क्या किया इस लड़की ने, हमारी बच्ची ने? शी इनोवेटेड एन आइडिया टू कीप द न्यूमरस प्रोडक्ट्स फ्रेश फॉर लॉन्गर आवर्स। क्योंकि हमें पॉलिथीन को बंद करना था, प्लास्टिक को बंद करना था, उसने पेपर्स को यूज किया। इसका होल फूड्स एंड कॉप्स नाम चलता है इस टाइम। आप गूगल आउट कीजिए ना आज इनका नाम, आप इसकी फोटो खींचिए मोबाइल से, फिर गूगल आउट कीजिए कि जो मैं नाम दे रहा हूँ ये इनकी आज वर्थ कितनी है। इनकी कंपनी तिलक मेहता, वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द लॉट, ही हैज मेड द ओला एंड उबर फॉर द डब्बा वालास। कितने डब्बास वाले बेचारे, वो अपने सिर पे रख के डिब्बा जाते थे, वो रेडी में रख के लेके जाते थे। आज वो एन पार्सल्स, इतनी बड़ी उसने कंपनी बना दी है और इसमें इतना इसमें नाम कमाया है। कृष्णित अरोड़ा, स्कूल ड्रॉप आउट। देखिए, ये तो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ बेचारा, स्कूल में ड्रॉप आउट हो गया था। आज ये हमारे देश की टॉप कंपनी, रिलायंस की कंपनी को भी सिक्योरिटी ये देता है। इसने इतनी अच्छी सिक्योरिटी कंपनी बना दी है विद 4 ऑफिसेस इन इंडिया एंड 1 इन दुबई। इज अ बिलियनर नाउअडेज, जस्ट अ ड्रॉप आउट। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एज नहीं होती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एजुकेशन नहीं होती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है कीड़ा। आपको करना क्या है? श्री लक्ष्मी सुरेश, रेनोल्ड वेबसाइट डिजाइनर, अकेली सिंगल हैंडेड 50 वेबसाइट्स बना के दी इसने टॉप की कंपनीज की, 50 वेबसाइट्स। और इसकी वर्थ देखिए जाके गूगल पे, कितना पैसा इसने कमा लिया। अंशुमन सिन्हा, called a youngest talent manager at the age of 25, he runs a Represent as a multi-junior talent management company. Along with that, campaigning क्या है? Talk India to the world। क्या बात है। और आज इसकी वर्थ देखिए, इसको अवार्ड मिल चुका है, पता है आपको? यंग बिजनेस लीडर अवार्ड अंडर 40 लेके आना अवार्ड बाहर जाके, बहुत बड़ी चीज होती है। रवनीर अलाबादिया, इस बंदे ने मॉन्क ई बनाया, एक यूट्यूब चैनल, और आज देखिए इसके यूट्यूब से उसने कितना 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसने पकड़ रखे हैं, और कितना इसको वहां से। तो मैं आपको हर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स भी दिखा दिया, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स भी दिखा दिया, एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर्स भी दिखा दिया, अभी आपको मैं एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स भी दिखाने जा रहा हूँ। दीपांजलि क्या है? इसने अर्नेस्ट यंग की जॉब छोड़ी थी 26 साल में, इसने अपनी एक काम शुरू किया, बैक्ड बाय सोशल कॉज। ये लड़कियों को मदद करना चाहती थी, महिलाओं को मदद करना चाहती थी। इसने इतने बढ़िया सैनिटरी पैड्स का एक आइडिया लेके आई बैम्बू फायर से, और आज लोअर कॉस्ट पे इसके जो पैड्स बन रहे हैं, और इसकी बहुत बढ़िया कंपनी है। इंद्रजीत जो है सीईओ ऑफ आई क्वांटा। इस इंद्रजीत एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स ने, आपने सुपर 30 मूवी देखी है ना, तो यहाँ देखिए 8,000 students get into the IIMs and other top business schools of their choice result with N-powered in the country। ये सीईओ है जिसने आई क्वांटा एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोला, ऑनलाइन। जैसे बायजूस सुना है ना, तो आप आई क्वांटा में। इंद्रजीत यंग लड़का। रितेश अग्रवाल, स्मार्ट यंग मैन हु यूज्ड टू वैल्यू इनसाइट्स गेन बाय द परस्यूइंग हिज हॉबी। उसने क्या कर दिया? आप दिमाग लगाएंगे ना, ताज, ओबराय, जितने होटल चेन्स है ना, उन्होंने अरबों रुपया लगा के इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी है, तो उनकी होटल की चेन है। ओए रूम्स को जरा पूछिए कि तेरे पास कितने खुद के कमरे हैं भैया, और उसकी वर्थ इस टाइम ताज से ऊपर चली गई है। ओए रूम्स इज अर्निंग इन बिलियंस जस्ट विद द नेटवर्किंग, जस्ट विद द ऐप। ये होता है दिमाग लगाना होता है।
खुद की एक भी प्रॉपर्टी नहीं और उनसे ज्यादा कमा रहा है जिन्होंने अरबों रुपए लगा रखे हैं. So that is the beauty. Like this, I just wanted to complete the talk because we have the discussions. Discussion is most important than traffic delivery on the one side. So I just stop over here. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैं आपको कुछ माइंड टूल्स सीखने हैं, तो यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें वो वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. आने वाले समय में अच्छी वीडियोस आएंगी, आप जुड़े रहें, स्किल्स की वीडियोस आएंगी, जुड़े रहें, सुने, जहाँ पे अच्छा मिले वो सुने, जहाँ पर अच्छा देखने को मिले वो पढ़े, जब मन करे अच्छा लिखने को तो जरूर लिखें. You must start writing diary also. Daily you must write a one page to whom you met today, to whom discuss with today, to whom you listen today. Then tomorrow it is going to be your worth asset. क्योंकि मैंने एक सच्चे बता दूं, जो कह रहा कि मैं आज एक्सपर्ट हूँ वो कल का लीडर था, आने वाले कल का नहीं, पुराने कल का. क्योंकि आपका 40 साल का तजर्बा धरा का धरा रह गया अगर आज आपकी स्किल्स आपके साथ नहीं है. जो बैंक में 40 साल से एक मैनेजर काम कर रहा था, जैसे कंप्यूटर आए उसने VRS ले ली, कहता कि मैं बहुत अच्छा मैथ्स जानता हूँ, बहुत अच्छा बैंकिंग जानता हूँ, लेकिन कंप्यूटर पे नहीं जानता हूँ, और इस आयु में सीख नहीं पाऊंगा, मुझे VRS. नोट कीजिए 2001 से लेकर 2003 में हमारे देश में कितने हमारे बैंकर्स ने VRS ली थी. क्यों? कंप्यूटराइजेशन हुई थी, उसके कारण कितने यंग पीओज ने जॉब भी ली थी, ये भी साथ में देखना पड़ेगा. तो उसमें से ऐसे भी कुछ मैनेजर्स थे जिन्होंने कंप्यूटर सीख भी लिया था और उसके बाद वो CGM भी बने, MD भी बने हैं देश में. ऐसा नहीं है कि किसी की जॉब जाती है. अगर आप स्किल्स साथ में नहीं रखेंगे तो वो तो आपको घर में भी आप जाके एक रोटी भी सेकोगे तो भी हाथ जल जाएगा, क्योंकि आपको रोटी सेकनी नहीं आती है. तो तवा तो गर्म रहता है, देखना है कि हाथ सेकना है कि रोटी सेकनी है. तो उतनी स्किल्स तो आपको आनी ही चाहिए. Some skills are essentials, some skills are for passion, and some skills are for survival. इसके लिए एक छोटी सी मैं यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा, and I will stop this with these questions. एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी एक बार नदी में सफर करने के लिए बैठ गया नाव में. उसने उसको देखा नाव को अपना चप्पू चला रहा है, तो उसको पूछ रहा है बड़े ऐंठ से, बड़े ईगो से, कभी रामायण पढ़ी? नहीं जी. अरे तेरी जिंदगी क्या है? महाभारत तो पढ़ी होगी तूने? नहीं सर, ये क्या चीज होती है? अरे तू तो बड़े धरती पे भार है भाई, तू तो क्या है तुम लोग. अच्छा. उसने कहा सर आप भी छोटा सा मुझे एक उत्तर दें, तैराकी आती है? अरे मुझे तैराकी क्या करनी है? सर अब आपको चाहिए होगी, नाव में हो गया छेक, मैं तो निकल जाऊंगा सर, आप देखो कि आपको उतारने के लिए कौन आने वाला है. अब बताइए कि आपने दुनिया भर की नॉलेज ले ली, अगर आपके पास वो एसेंशियल स्किल्स नहीं थी तो भैया सारी साथ में रख लो, अगर वो आपको उतार के ले जाएं, आपकी नॉलेज दुनिया भर के दे दिए डॉक्टर बनना ने, अगर वो स्किल्स नहीं है तो किसी का नहीं. With this, I just conclude from my side. Now we'll open for the questions. Thank you. Thank you so much, sir. It was truly amazing and very interesting. Today, we came to know a lot of new avenues for the startups and for the entrepreneurs from your side. And you have made a lot of real life examples, which really going to, are very useful for all of us, I'm sure. And without getting much delay, I would like to start the question answer session with your due permission, sir. Right. Please, so please the go first ahead. question, yes, sir. The first question is that how to motivate people to start their own business? How to motivate people to start their own business? अगर जो भी शख्स ये सोच रहा है कि मुझे किसी को मोटिवेट करना है उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो कार्य उसको खुद पहले करना पड़ेगा. एक सत्य बताता हूँ. एक माँ बाबा फरीद के पास अपने बच्चे को लेके की उंगली पकड़ के. बाबा फरीद बहुत ज्ञानी थे. बाबा फरीद, मैं इस बच्चे से बहुत परेशान हूँ, ये छोटा है लेकिन अधिक मात्रा में ये गुड़ खाता है, शक्कर खाता है, जिसके कारण इसके पेट में कीड़े भी बन रहे हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है. आप इसको आशीर्वाद दें, सिर पे हाथ रखें, आपका कहा मान लेता है, क्योंकि आपका बहुत ये सत्कार करता है, अभिनंदन करता है. ऐसे कर माता, तो फिर आना 10 दिन के बाद. अच्छा जी, पता नहीं कुछ मूड नहीं होगा आज बाबा का, कुछ था ऐसा. 10 दिन के बाद गए, बाबा बैठे थे, बच्चे को गोद में बिठाया, उस पे सिर पे हाथ रखा. गुड़ खाएंगे, जरूर खाएंगे, लेकिन इतनी मात्रा में खाने से हमारे शरीर को आनंदित भी होगा और वो भी देगा. बच्चे ने भी बड़े अच्छे से, बाबा ठीक है इतना खाना, हाँ इतना तो खाना है मेरे बच्चे, रोज खाना खाने के बाद. बाबा ये इतनी तो बात थी, आपने दोबारा मुझे गांव से बुलवाया, चक्कर लगाया? बाबा कहते नहीं, 10 दिन से मैंने गुड़ का प्रयोग छोड़ रखा है,
मैं भी ज्यादा ही खाता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर आज डॉक्टर मन्ना यहाँ से किसी को कुछ मोटिवेट करना चाह रहा है किसी चीज के लिए, तो पहले मुझे खुद से देखना चाहिए कि क्या मैं बुक्स डेवलप करने के लायक हूँ। क्या मैं कुछ ऐसी बात रख सकता हूँ कैमरे के सामने? मैं लोगों को कहता हूँ कैमरे पे आके पढ़ाना शुरू करो, कैमरे का मन्ना जी, तो पहले खुद तो शीशे में शक्ल देखो भाई साहब। दूसरों को मोटिवेट करना बहुत आसान है, और हमारे देश में बहुत दुनिया के बाबा लोग बैठे हैं मोटिवेट करने के। अरे भाई साहब, अगर जीवन बदलना था तो पहले खुद का बदलो ना। आप तो मेरी दक्षिणा पे उंगली रख के बैठे हो, निगाह रख के बैठे हो कि 500 दे, तो तेरी तो भैया आज से दुनिया बदलने वाली है। भाई साहब अपनी बदलो, मेरे से 500 और ले लो, अपनी तो बदलो। हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना है, सिर्फ हमें। टीचर का सबसे बड़ा रोल जो है मैं बताने जा रहा हूँ आज ही, ये एक सत्य बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी थिएटर में मूवी देखते हैं ना, आप अमिताभ बच्चन को बहुत सम्मान देते, देना भी चाहिए, वो सम्मान पूर्वक हैं, हमारे अभिनेता हैं, वो अभिनय करते हैं। आपने कभी नोट किया अमिताभ बच्चन को सेहरा बांधा जा रहा है, उनके पीछे उनके डायलॉग कोई लिखता है, उस मूवी की स्टोरी कोई लिखता है, अमिताभ बच्चन से वो डायरेक्शन भी कोई डायरेक्ट करवाता है। अब आओ जरा मेरे टीचर के पास, टीचर अपना कंटेंट भी लिखता है, कंटेंट की डिलीवरी भी खुद बनाता है कि कैसे मुझे क्लास में बोलना है, और अभिनय भी खुद करता है। अरे ये छोड़ो, मूल्यांकन भी खुद ही करता है बेचारा। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या भेजा, क्या काटा, पेपरों में कितने पास कितने फेल, वो भी टीचर करता है। इनकी तो मूवी फ्लॉप होने के बावजूद ही कहते हैं तब दूसरी मूवी चल पड़ेगी, सिर्फ पैसे का लॉस हुआ है। तभी तो कहा हमारे देश के महामयी जो हमारी अदालत ने दिल्ली की, ऑनलाइन टीचिंग बच्चों का खेल नहीं है। दिस इज द सेम डायलॉग यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर। मेरे दिल को छू गई बात। धन्य है हमारे न्यायाधीश, उन्होंने इस बात को समझा, हमारे दर्द को समझा। आपने सोचा कि हम घर में बैठकर कंप्यूटर को बच्चे को कुछ भी खिला रहे हैं? बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है। क्लास में खड़े होकर बंद कमरे में कुछ भी बोल के चले जाए मैडम। अब जो यहाँ पे डॉक्टर मन्ना ने बोल दिया, ये 10 साल तक रिकॉर्ड होने वाला है। और 10 साल क्यों, हमारे कितने अभिनेता जा चले हैं। हमारे ऋषि कपूर जी की मूवी, मेरे लिए आज भी ऋषि कपूर उतने ही जिंदा जगह थे, क्योंकि मैंने तो कभी उनको फिजिकली मिला ही नहीं। मैंने उनको पर्दे पे देखा, स्क्रीन पे आज भी देख रहा हूँ। मेरे लिए कौन कहता है ऋषि कपूर जी हमारे बीच में नहीं? मेरे कारण बिल्कुल बीच में है। लो अभी चला देता हूँ मूवी। क्यों, कभी उनके साथ खाना खाया? नहीं खाया, तो फिर तुम्हारे लिए कहाँ गए भैया वो? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो मोटिवेट तो हमें सिर्फ खुद काम करके करना, दूसरों को कहने की जरूरत नहीं कि भैया मोटिवेट हो जा। ना इसका कोई टॉनिक आपकी कल लैब में, मॉडर्न लैब में बनता है, 2 शीशी मुझे दे दीजिए, मुझे भी मोटिवेट होना, मैं पी के मोटिवेट हो जाऊंगा। थैंक यू। मोटिवेशन तो आपकी बातों से मिल रहा है सर आज। Thank you you. so much, sir. We are having approx 145 attendees with us, and our Okay. chat box is full of the compliments, sir. They all are thoroughly enjoying your session, including us. The next question is, what a common man should understand by the self-dependent India? Yes, बहुत सत्य है। होता क्या है, जब भी बड़े मन से हमारे बड़े नेता, माननीय नेता कुछ बोलते हैं ना, वो अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो बन जाती है, परंतु उसके नीचे बहुत सारी शैडो आ जाती है, क्योंकि जितने बड़ी छतरी होती है ना, उसकी उतनी शैडो आ जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी टाइम कहा था डिजिटल इंडिया, मुझे उसको समझने में 3 साल लगे। मुझे खुद को जब स्वयं बन के सामने आई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बन के सामने आई, तब समझ में आया कि मोदी जी चाह क्या रहे थे। मोदी जी ने कहा देश को विकसित करना है, हर खेत को पानी, हर हाथ को हुनर। ये 2 शब्द उनके आज भी मेरे मन में एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, हर खेत को पानी, हर हाथ को हुनर। अब उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। ये सत्य है, हमें समझ लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन पाएगा जब तक मैं एज ए डॉक्टर मन्ना आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। अगर आज मैं अपने घर के खुद के कपड़े खुद धो सकता हूँ, अपना खाना खुद पका सकता हूँ, अपने घर की सफाई खुद कर सकता हूँ, अपने पेट के लिए रोटी खुद अपने हुनर से, चाहे मेरी टीचिंग स्किल्स हैं, चाहे मेरी लेक्चर स्किल्स हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं आत्मनिर्भर बना तो मेरा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा परिवार बना तो मेरा मोहल्ला आत्मनिर्भर बनेगा, जब मेरा मोहल्ला आत्मनिर्भर बनेगा तो मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। दिस इज द फैक्ट। आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में हमें कहीं बाहर जाके तप नहीं करना है, हमें जाके कुछ नहीं, हमें सिर्फ सबसे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर, कि मैं पहले खुद, फिर मी से बाद में अवर, मैं कितनों को नौकरी देने लायक हूँ, मैं कितनों को रोजगार दे सकता हूँ, कितनों के पेट पाल सकता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं देनी है, मुझे वैसा दान नहीं, मुझे दान यहाँ पे शिक्षा, मुझे वो दान नहीं देना कि चल मैं तेरे को रुपए, वो दान नहीं है। दान वो है कि तुरंत जाके अगर मैं किसी गाय को चारा दे देता हूँ,
तुरंत जाके बाहर में एक कौवे को पानी पिला देता हूँ, तुरंत मेरे गेट पे कोई भूखा खड़ा है उसको रातों रात में एकदम नौकरी नहीं दे सकता, उसको खाना खिला देता हूँ, वो दान है। कपड़ा दिया, खाना दिया, शेल्टर दी, वो दान है। लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए मुझे किसी को दान नहीं देना, मुझे पहले खुद को आत्मनिर्भर करना है। जैसे मैं खुद आत्म जब देश का मान लीजिए 135 करोड़ सब आत्म तो देश ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो गया ना, हमें किसी का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। अनाज यहाँ पे मिलेगा, फैक्ट्री यहाँ पे मिलेगी, कपड़ा यहाँ पे मिलेगा, मोबाइल भी यहाँ पे मिलेगा, बिजली भी यहाँ पे मिलेगी, खत्म। फिर दूसरे देश मेरा मुंह देखेंगे, सर रोटी दे दो, सर दवाई दे दो। आज हमें अब दिवाली हमारी होती है, मैं विदेशी लाइटें जगा के जब मैं दिवाली मनाता हूँ, दीवे विदेशी चलाता हूँ, त्योहार बसंत का मेरा होता है, मैं विदेश की डोर लेके पतंग लेके उड़ाता हूँ, तो मुझे आहत होता है ना, तो तभी कहा ना बहिष्कार करो, बहिष्कार करना ही पड़ेगा। जितना लेट करेंगे उतना नुकसान उठाएंगे, बहिष्कार करना ही पड़ेगा। कम खा लेंगे, भले आज मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजों में इंडिया की क्वालिटी नहीं, मैं मानता हूँ, स्वीकार करेंगे, क्या दिक्कत है। आज अगर नहीं है तो अगर करते रहेंगे तो क्वालिटी आएगी ना। अगर हम उसको उसको छोड़ ही देंगे यूज करना, तो क्वालिटी कहाँ से बनेगी। क्वालिटी तभी बनेगी, पहले 2 बार यूज करेंगे, कम का नहीं है, उसमें संशोधन करेंगे, उसमें और संशोधन, तो क्वालिटी बन जाएगी। लेकिन एक बार देशी यूज तो करना शुरू करें, ये होता है सबसे बड़ा काम, आत्मनिर्भर। धन्यवाद। Very true, sir. I really agree, and it was really informative. The next question, sir, that what are the impact on the Indian startup ecosystem after the COVID-19? We would like to know some threat and opportunities regarding the same, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले मैं थ्रेट्स ही बताऊंगा। हमारे देश के बहुत सारे स्टार्टअप्स की जो एंजल फंडिंग थी, क्राउड फंडिंग थी, वो रुक गई, बिल्कुल, क्योंकि प्रायोरिटीज होती हैं, पहले देश के नागरिक को बचाना होता है। हमारे बहुत सारा फंड डाइवर्ट करना पड़ा, हमारे बहुत सारे जो CSR थे इंडस्ट्रीज के, उन्होंने अपना फंड हेल्थ केयर में किया और अच्छा किया। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर्स ज्यादा होने चाहिए, मास्क ज्यादा होने चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। डॉक्टर्स की सैलरी ना रुक जाए, इसका ध्यान रखें। नर्स के घर में चूल्हा ना बंद हो, जिसका ध्यान रखें। उसके कारण हमारे कुछ स्टार्टअप्स की फंडिंग को टाइमिंग होल्ड पे डाल दिया गया है। इसलिए उनको ये एक देखना पड़ेगा कि वो इसका दूसरा क्या चुनाव कर सकते हैं, ढंग अपना सकते हैं, लेकिन वो आहत ना हो, बस ये मैं कहना। इसके साथ ही जैसे एक दरवाजा बंद हुआ ना, 100 दरवाजे खुल गए। आपका आज जो स्टार्टअप्स का इंडिया के पास पोटेंशियल है और जितनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज चल क्या, एक तो होता है हमें लेके आनी पड़ती थी। 1000+ companies, those are going away from China. They want the Indian startups to be start their small units. क्योंकि पता क्या है, अगर मैं करोड़पति हूं ना, मैं आप पे पूरा मैडम विश्वास नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मैडम मैं आपको पायलट प्रोजेक्ट देता हूँ, चलिए आप ऐसे करो, छोटी सी दुकान खोलो, अगर आप मेरी दवाई वहां पे बेचना शुरू करोगे ना, मैं आपको 10 पत्ते दे देता हूँ। मैं धीरे धीरे आपको स्टॉकिस्ट बनाऊंगा, पहले दिन मैं आपको स्टॉकिस्ट नहीं बनाऊंगा। कभी भी आपको बाहर की विदेशी कंपनी स्टॉकिस्ट नहीं बनाने वाली आपके इंडस्ट्री में। तो ये स्टार्टअप्स ही होंगे जो माइक्रो से शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट विद द माइक्रो, देन दे विल गो टू द मीडियम, स्मॉल मीडियम, देन गो टू द। कभी भी टाटा रातों रात नहीं पैदा हुई थी, कभी भी बिरला रातों रात नहीं पैदा हुई थी, एक दुकान से, एक कमरे से पैदा हुई थी। तो स्टार्टअप्स को चाहिए, इंटरनेशनल जो हमारे फंड मैनेजर हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज जो चाइना से दुखी हैं, या दूसरी जगह से दुखी हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, ये प्रूव भी हो गया कि हम भले हम चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं आज हम संक्रमित होने में, लेकिन जितनी हमारे देश में हम जो खो पा रहे हैं अपने अपनों को, शायद हम काफी उनसे पीछे, और भगवान करे हम पीछे ही रहे उसमें, हम ज्यादा लोगों को ना खोएं, अपनों को ना खोएं, उसका दर्द बहुत होता है। उसके कारण उनको पता कि इनका स्टेमिना है। देखो ना, हमारे देश का बच्चा 48 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करता है, माइनस पे भी काम करता है, कर रहा है ना जाके विदेश में, कनाडा में हमारे बच्चे, अमेरिका में हमारे बच्चे। तो अब वो देश में जब करना चाहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। सिर्फ सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट पे या लोकल फंड मैनेजर पर डिपेंडेंट ना होते हुए उनको कुछ विदेशियों का मन भी जीतना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर उनकी रात को 2 बजे कॉल आती है तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि 2 बजे मैं सो रहा था, मैंने आपकी कॉल नहीं ली, क्योंकि अमेरिका वाले रात को 2 बजे कॉल पे आएंगे और उनका एक स्टाइल होता है कि 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद नहीं। थोड़ी सी ये स्किल्स होंगी हमारी, थोड़ी सी हमारी स्किल्स, थोड़ा सा हमारा डिसिप्लिन, थोड़ा सा हमारा डेली का अभ्यास, ये रख ले हमारे बच्चे, तो स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े दरवाजे खुल गए हैं, बहुत बड़े दरवाजे खुल गए। सिर्फ हमें वो दरवाजों की चुनाव करना है कि मुझे कौन से दरवाजे से अंदर जाना है, बस। आइडियाज हमारे, देखो ना, आज
फेसबुक वहां जाके बनती है, गूगल वहां जाके बनता है, चलाते हम हैं। तो अब टाइम आ गया कि हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। आज हमने कहा कि नमस्ते से नमस्ते, तो आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से नमस्ते आज सोच रहे हैं, अगर यही 5 साल पहले बनाई होती तो मुझे जूम पर डिपेंड ना होना पड़ता, मुझे जूम पर डिपेंड ना होना पड़ता, मैं अपना देश ही चलाता। मुझे आपने अगर भीम समय पर लेके आए होते तो शायद मुझे बहुत सारे ऐसे जो बाहर के थे, चलो पेटीएम तो मेरे घर का है, उसको तो मैं अभी भी स्वीकार करूंगा, पहले भी करता था, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे थे कि मुझे उनको लेना ही नहीं था। हम देर कर देते हैं, तब तक वो बाहर वाले आके पैर पसार देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी यही हुआ था। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की थ्योरी को पढ़ेंगे तो तब भी हम हम भी तो बाहर की स्पीड से चले कि जैसे बाहर में बने तो हमारे यहाँ बन जाए। लेट बनता है तो हम लोग क्या होते हैं कि दूसरे के आदी हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुकी होती है, फिर हम छोड़ना नहीं चाहते। फिर हम कहते हैं नहीं भैया, मैं एप्पल से बहुत खुश हूँ, मैं अभी लावा से रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, कार्बन को यूज नहीं करने वाला हूँ, भले उसमें ज्यादा अच्छा फीचर्स आ जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा एप्पल पे मन टिक गया है, मेरा सैमसंग पे मन टिक गया। ये थोड़ी सी चीजें हैं, हमें स्पीड वही रखनी चाहिए। हम स्पीड धीरे करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ के लोग ना जल्दी में कहते हैं ना, जो और दिखाओ, आजकल बच्चा कहता है बस दिखा दो बटन, पापा अभी शाम को आ जाए ये वाली साइकिल। नहीं भैया, आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, लेटेस्ट हुई है। एक बच्चा अपनी बेटी को गोद में लेके पास की शॉप में गया, बच्ची बहुत रो रही थी, उसको एक पर्टिकुलर टॉय लेना था। उसने टॉय सिलेक्ट किया, टॉय उसके काउंटर पे रखा, कहता कि बिल कर दे। उसका वो बिलिंग टेलरिंग मशीन पे बिल, उसका कोड सिलेक्ट कर रहा था, हो नहीं रहा था। उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। जैसे उसने वो टॉय को खोला तो वहां पे लिखा था मेड इन चाइना। उसने टॉय को छोड़ दिया, बच्ची रो पड़ी। ये बाहर को जाने लगा, कहता रुकिए भाई साहब, भाई साहब अचानक क्या हो गया, आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आप अभी बच्ची रो रही है उसको इतना रुला रहे हो और आप टॉय छोड़ के जा रहे हो। मैं दे रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, मैनुअल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, प्राइस कम दे देना। कहता सुन मेरी बात, ये 3 मिनट से ज्यादा नहीं रोएगी, इसको मैं अभी दूसरी चीज में बहला दूंगा, लेकिन इस टॉय लेने के कारण मेरे देश के सैनिकों के बच्चे सारी उम्र जो रोने वाले हैं ना, मैं वो रोना नहीं देख सकता, मैं चाइनीज चीज नहीं लूंगा। ये आज की सत्य घटना है ना, छपी अखबार में तो कहीं ना कहीं तो हुई है ना। यही चीज है, हमें आत्मनिर्भर लगाना है, चाहे हमें स्टार्टअप्स को लेके आना है, जैसे भी है हमें हमें लेके आना है, भले 1 रुपए से लेके आना है, भले जीरो फंडिंग से लेके आना है, लेकिन हमें लेके आना है। जब तक हम स्वदेशी नहीं बनाएंगे ना, हम दिक्कत में हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। थैंक यू। Was really inspiring and fantastically explained by you, sir, and it was really very much impactful. And I'm really sure, I mean, the knowledge and the guidance which you have shared with us certainly going to add a lot of value in our life. Now, I would now like to request our Vice Chairman, Shantanu Kharia, sir, to propose a vote of thanks to Dr. Manpreet Singh Manna, sir. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं आपका सेशन सुन रहा था। कैसे हैं डॉक्टर शांतनु, हाउ आर यू? ग्रेट, I'm good sir. It's always so, energetic, like it's always so full of energy to listen to you. You always give some positive vibes while delivering your lectures, sir. Because I was listening to your lecture sitting around, and मैं आपकी पीपीटी जो आप प्रेजेंट कर रहे थे, मैं वो देख रहा था, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स लेता जा रहा था फोन में कि दिस इज आल्सो फॉर यूज ऑफ मी और मेरे बच्चों के लिए, और फॉर ऑल द एजुकेशन फ्रेटर्निटी जो भी अपन को यहाँ पे आज सुन रहे थे इस वेबिनार में, मतलब उन लोगों के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। एंड आई होप सो कि हाँ, एंड आई होप सो कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे सर थे, दे मस्ट हैव गॉटन समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस वेबिनार। एंड हम आगे निश्चित तौर पे जो रास्ते आपने बताए हैं, जिस तरीके से हमको इनोवेशंस को प्रमोट करना है एट एन एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, हम उन चीजों को प्रमोट करें, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू फॉलो योर गाइडलाइंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग दिस वेबिनार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड द स्पेशल थैंक्स गो टू डॉक्टर पुनीत। उनको याद आ गया कि डॉक्टर मन्ना भी एक है, और उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका रहता है सेशन। मैंने कहा ठीक है, मैं तो इंतजार में था, क्योंकि आपके साथ मेरा एक स्नेह है, एक प्यार है, एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है प्यार वाला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर मुलाकात हुई। इस बार वर्चुअल हुई है, पिछली बार हम मिले थे, और जल्द फिर दोबारा मिलेंगे आपसे ऑनलाइन। मुझे फार्माथॉन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आप ऑनलाइन फार्माथॉन भी करवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और We all are working on it, हम sir. कर सकते हैं मिलके। So we'll be in touch. Thank you very much for inviting and for giving this platform and this opportunity to be linked with the many good students of my country, my learners, my good teachers of my country, my friends. Thank you.
I thank you again, sir, to our guest speaker, Dr. Manpreet Singh Manna, sir, once thank you. again. I thank you, our chairman, Dr. Shri Anil Kharia, sir, our vice chairman, Shri Shantanu Kharia, sir, our group director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir, for your kind presence here. And I thank all the participants. You all will receive the e-certification within the 7 working days. And you all are requested to fill the feedback link, which you will receive after the host will finish the meeting. Thank you so much for joining us. Thank you once again, sir.